All of you, welcome to the online classes of TMPS, and I hope that you are studying well. So, as you know, class 10, we have till now completed a very important portion that was till 1916. I hope that all the videos which I have uploaded is clear to you, and if you have any problem, you can call me or text me regarding that. Today we will be continuing with the Indian nationalist movement phase 1. It is a very important phase that has led to the arrival of Gandhiji into the scene of Indian independence, and finally we will be moving and marching towards the independence. We will be talking about different tools, different tactics which are adopted by Gandhiji, Congress and different other personalities of the country, and how did the Britishers responded. It's a very interesting topic, so I hope that you will be studying well. And come on, let's get started. Now we'll be starting with this chapter with the year 1915. Year 1915 is a very important year in the Indian history, as Mahatma Gandhi, you all know Bapuji, yes, being Bapuji, the Mahatma Gandhi of our country, Mohandas Karamchand Gandhi, arrived back in India. He is an Indian. He basically was working in the South Africa. What happened, I'll be telling you. What happened that he was a barrister, he was an advocate, and he was working in South Africa on a case for his friend. And when he was there working in South Africa, he did certain things for the people there that responded well, and it created a legacy of Mahatma Gandhi, and he became a popular name in the anti-racial movement. What is anti-racial movement? रंग भेद. Yes, वहां पर क्या था? रंग भेद था काले गोरों के बीच में. गांधी जी को भी फेस करने पड़ा था. I'll be telling you that. अब what happened that Gandhi ji became a popular face there, and his legacy, his name, his fame was growing. एंड इंडियंस ऑल्सो हर्ड अबाउट इट. जब इंडियंस को पता लगा कि यार जब कोई इंडियंस बाहर के लोगों के लिए इतना अच्छा कुछ कर सकता है तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा ही करेगा. सो व्हाट हैपेंड दैट गोपाल कृष्ण गोखले वाज सेंट टू साउथ अफ्रीका टू कन्विंस गांधी जी एंड मेक हिम रिटर्न बैक टू इंडिया. अब व्हाट हैपेंड that how did Gandhi ji started the anti-racial movement? Basically, when Gandhi ji was moving towards his friend's place, he was basically going to have a case for his friend, and when he was going for that case on the St. Petersburg station, he was thrown out of the train. Yes, what happened that in that train there was a compartment that was for English people, and in that compartment it was written, that first class compartment, it was written dogs and blacks are not allowed. उसमें क्या लिखा था? Dogs और blacks मतलब समझ रहे हो ना, काले लोग और dogs are not allowed. अब गांधी जी को had taken the first class ticket. उन्होंने टिकट ली. ये नहीं कि गांधी जी बस बैठ गए कि भाई उनको उठा के फेंक दिया. नहीं, गांधी जी बैठे थे बट टिकट के साथ बैठे थे. उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया. उन्होंने सोचा कि भाई आई एम educated person and I should not be treated like this. But what happened when some Englishmen came there, they saw that a black person, basically Indians are also considered to be black skinned person, so British people. So what happened, they thought that how come they dared to do so, इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, इसकी सजा मिलेगी. So what happened, they threw Gandhi ji. They threw him on the St. Petersburg station, and that is why it was a famous incident in Gandhi ji's life. Gandhi ji realized that what a pity was there, what a condition that the black people were facing there. उनकी दयनीय स्थिति पे गांधी जी को तरस आया, क्योंकि उन्होंने खुद भी उस चीज को एक्सपीरियंस किया. अब जब खुद एक्सपीरियंस करता है ना इंसान, तो सीखता जल्दी है. So what happened that Gandhi ji started an anti-racial movement there against the Britishers, and his name and fame was growing. What happened that Gandhi ji has two people who he liked very much. One was Swami Vivekananda. He was a great admirer of Swami Vivekananda, because Swami Vivekananda's teaching also promised that the youth and the young people of our country can do wonders for our country, and they can bring India into a huge and a beautiful country. So what happened? He loved
the teachings of Swami Vivekananda and a very famous personality that was Leo Tolstoy. His philosophical writings were also touching Gandhiji, and he always advocated the practice of non-violence. So he was taking all the measures in there for anti-racial movement, but all the measures were non-violent. When Gopal Krishna Gokhale went to South Africa, he basically told Gandhiji about the pity conditions of the Indians there in our country, and how come the Indians are facing such a bad situation in our country. So Gandhiji finally decided that he'll be coming back to India, and he came back to India in January 1915. That is why Gopal Krishna Gokhale is also known as the political guru of Gandhiji, because he gave him the first instinct and first knowledge about how the proper politics comes into place and how to do proper politics. When Gandhiji came back to India, he did not wanted to jump into the politics and the scene of independence altogether. So what happened? He decided कि हम पूरा 1-2 साल का राउंड लेंगे all across the country to see the condition of the people all around the country. क्या हुआ? उन्होंने सोचा भारत भ्रमण करते हैं, एक इंडिया टूर करते हैं, not for just visiting places. ये नहीं कि घूमने जा रहे थे monuments देखना. He wanted to see that how the people are living, what are the conditions they are facing. उन्होंने कहा जब खुद एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि भाई उनका एक एक्सपीरियंस पिछला वाला उन्होंने देख लिया ना, हाँ ट्रेन वाला. सो व्हाट हैपेंड कि अब उन्हें लगा कि भाई अब जब ये पोजीशन मुझे एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी तभी तो मैं उनकी पिटी कंडीशंस को समझूंगा. सो व्हाट हैपेंड? गांधी जी डिसाइडेड टू टेक अ टूर ऑफ आवर कंट्री. When he took the tour of a country, he established his ashram in Sabarmati, basically near Sabarmati in Ahmedabad. Sabarmati is a river साबरमती के किनारे उन्होंने अहमदाबाद में एक अपना आश्रम बना लिया. आपने सुना भी होगा, ना खड़क ना कुल्हाड़ी ना गोदाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. मतलब नॉन वायलेंट मेजर्स के थ्रू उन्होंने ना बिना कुल्हाड़ी, बिना खड़क, बिना किसी हथियारों के क्या किया, ब्रिटिशर्स को थ्रो करने में बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट प्लेस किया. अब हम बात करते हैं गांधी जी के मूवमेंट के पैटर्न की. व्हाट हैपेंड? गांधी जी ऑलवेज adopted the meaning of non-violence. I have told you what is non-violence. Non-violence basically means that we should not adopt the forceful manner or pick up the arms against anybody. So what happened? Gandhi ji adopted a new policy that was सत्याग्रह. क्या बोला उन्होंने? सत्याग्रह. सत्याग्रह मतलब सत्य की विजय के लिए एक व्रत. हम लोग जो भी काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? सत्य के लिए कर रहे हैं. वी आर ऑन द करेक्ट साइड, वी आर fighting for the truth and we should basically fight in a correct manner. तो उन्होंने उस पूरे मूवमेंट का नाम सत्याग्रह रखा. अब गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जामों में आपके, तो वो था चंपारण सत्याग्रह. चंपारण सत्याग्रह. इसके अलावा इन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स अहमदाबाद के लिए काफी काम किया. फिर सूरत डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने क्रॉप फेलियर ऑफ फार्मर्स के लिए काम किया. लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे चंपारण की. चंपारण बेसिकली एक मूवमेंट था जहां पर गांधी जी ने फाइट किया बेसिकली नॉन वायलेंट मैनर, सत्याग्रह के फॉर्म में, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण. और 1918 देखिए 1917 में इन्होंने पूरा का पूरा मूवमेंट को टेक प्लेस किया. 1917 जो समय था ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है इनकी लाइफ का, बिकॉज चंपारण वॉज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार और इट इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार एट दिस मोमेंट ऑल्सो. वॉट हैपेंड दैट इन दैट प्लेस देयर वॉज इंडिगो प्लांटेशन. किस चीज का प्लांटेशन होता था? इंडिगो. इंडिगो मतलब समझते हो? नील. आया नया उजाला 4 बूंदों वाला. यस करेक्ट, नील. नील की खेती होती थी वहां पर. और नील की खेती जो होती है वो बेसिकली लैंड को इनफर्टाइल कर देती है, या इंग्लिश में बोले तो बैरन कर देती है, या उपजाऊ नहीं रह जाती लैंड आफ्टर सम टाइम. बट व्हाट हैपेंड? द पीपल वाज पेड लेस फॉर दैट. जो पेमेंट था उसका वो क्रॉप्स के लिए बहुत लेस था. सो व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी जी वेंट टू चंपारण, ही सॉ दैट देयर वाज अ पिटी कंडीशन ऑफ द फार्मर्स देयर. ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस. एंड फाइनली गवर्नर वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द क्रॉप and take certain steps so that the farmers of our country should have some relief.
तो ये चंपारण मूवमेंट की सक्सेस के बाद गांधी जी की पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का मूवमेंट हो गया सूरत में, प्लस अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स, इनके जो मूवमेंट थे गांधी जी को, इनकी जो पॉपुलैरिटी थी ना अपने प्राइम पे पहुंचने लगी। एंड गांधी जी बिकेम अ हाउस होल्ड नेम इन कंट्री एंड ईच एंड एवरीबडी नाउ न्यू गांधी जी। गांधी जी ने इसी समय कांग्रेस भी पहले से ही ज्वाइन कर ली और कांग्रेस के एक बहुत ही एक्टिव लीडर की तरह वो सामने आए। इसके पहले अब इवेंट्स जो चल रहे थे इंडिया में, आपको मैंने बताया था 1915 देयर वाज स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 से 15 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हो गया, पूरी की पूरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो इट वाज बीइंग प्रॉमिस्ड बाय द ब्रिटिशर्स कि इफ द इंडियंस वुड बी हेल्पिंग द ब्रिटिशर्स, अगर आप हमें हमारी हेल्प करेंगे तो विल बी गिविंग यू dominance status, will be giving you certain freedoms. And what happened that as the world war was over in 1918, जब 18 में ओवर हुआ तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्या हुआ, जब ये दिखाई नहीं दे रहा कि भाई whether the Britishers would give something, तो ब्रिटिशर्स भी अपने काउंटर पार्ट्स करने लगे, ब्रिटिशर्स अपने एक्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करने लगे कि इंडियंस उनके खिलाफ आवाज ही ना उठाए। अब सबसे पहले व्हाट वाज सर्टेन मूवमेंट्स, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सर्टेन मूवमेंट दैट द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड, पहला बात करते हैं रॉलत एक्ट। रॉलत एक्ट 1919, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। व्हाट हैपेंड, रॉलत एक्ट इज आल्सो नोन एज ब्लैक बिल फॉर आवर कंट्री। रॉलत एक्ट में आपको मालूम है देयर वाज अ फेमस कोट इन दैट, नो वकील नो अपील नो दलील। इसमें एक फेमस एक्ट चलता है, नो वकील नो अपील नो दलील। क्या था ये 1919 में ब्रिटिशर्स ने इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिया कि अब इंडियंस अगर अपने राइट्स को मांगे, जो प्रोमिसेस किए हैं ब्रिटिशर्स उसको फुलफिल करने की बात करें, तो लॉस को इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि एनीबडी कैन बी अरेस्टेड फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ 3 years। 3 सालों के लिए उन्हें जेल में डाल सकते थे ब्रिटिशर्स विदाउट एनी ट्रायल। विदाउट एनी ट्रायल मतलब बिना उनके ऊपर कोई केस चलाए, बिना उनके ऊपर कोई भी मुकदमा किए, वो उन्हें 3 सालों तक जेल में डाल सकते थे। और आप जानते हैं क्या हर्ष होगा कोई इंसान जब 3 सालों तक जेल में रहे। तो जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इंडियंस को लगा कि नहीं, इट इज अ वेरी क्रूअल एंड अ वेरी बैड मूव दैट इज बीइंग क्रिएटेड एंड टेकन बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये धीरे धीरे मूवमेंट बहुत ज्यादा क्या होने लगा, अनपॉपुलर होने लगा। ये एक्ट बहुत ज्यादा अनपॉपुलर होने लगा और उसकी वजह से कुछ इंसिडेंट्स हुए इंडिया में, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करने का एक कम से कम क्या करना था, झूठा मुखौटा तो दिखाना था, फॉल्स फेस तो दिखाना था। ब्रिटिशर्स हैव टू शो समथिंग कि हाँ हमने प्रॉमिस किया तो वी हैव फुलफिल। बट क्या किया, बेवकूफ बनाया उन्होंने। फिर से वही बोले ना कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, फिर से पुरानी शराब नई बॉटल में डालकर सर्व कर दी इंडियंस के लिए। क्या किया, what happened that Britishers promised was earlier they promised that Indians would be getting a dominant status, कुछ नहीं दी उन्होंने। बस सिंपल से कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस किए, कहा कि नाउ द वोटिंग राइट्स वुड बी गिवन टू द इंडियंस एंड दे कैन सेलेक्ट देयर लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ वायसरॉय कमिटी वुड बी इंक्रीज्ड, इंडियंस नंबर ऑफ इंडियंस वुड बी इंक्रीज्ड। बट एक किंतु परंतु बट जरूर लगा देते हैं। तो क्या बट में जोड़ा उन्होंने, बट द फाइनल डिसीजंस वुड बी ऑफ द वायसरॉय, द फाइनेंशियल मैटर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री वुड बी टेकन बाय वायसरॉय। इंडियंस कैन ओनली टेक द मैटर्स व्हिच आर रिलेटेड टू डे टू डे अफेयर्स, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मेजर इश्यूज। अब जब ये सारी चीज हुई तो इंडियंस का और ज्यादा पारा हाई हो गया, होना भी चाहिए भाई, आपको प्रॉमिस किया जाए फुलफिल ना किया जाए, गलत बात। अब व्हाट हैपेंड, इसी को लेते हुए ये रॉलत एक्ट का जो क्रूअल इंसिडेंट था, इसी को लेते हुए क्या हुआ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। अब देखिए जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि आपको मालूम है भगत सिंह की भी कहानी इसी से निकलती है जोड़कर। साथ ही साथ ये जो भगत सिंह की कहानी तो बाद में जोड़ेंगे हम लोग, इससे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की नींव यहीं पर रखी गई। अब देखिए व्हाट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, विल बी डिस्कसिंग दैट। बिफोर दैट व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट, उसके भी पहले व्हाट वाज जलियांवाला बाग इंसिडेंट या जलियनवाला बाग इंसिडेंट। व्हाट हैपेंड दैट देयर वाज अ मास बेसिकली fighting against the Britishers and the people were
फ्यूरियस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन दिस रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोग बहुत फ्यूरियस थे और उन्होंने गवर्नर हाउस पर पेट्रोल बॉम्ब्स और बहुत सारे आप कह सकते हो पेट्रोल बॉम्ब्स वगैरह फेंके पंजाब में। और ये अमृतसर में हुआ, लाहौर में अमृतसर में ये पूरा इंसिडेंट टुक प्लेस किया। और क्या हुआ कि यहाँ ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लगा। मार्शल लॉ बेसिकली जानते हैं जैसे कर्फ्यू होता है, दैट इज आर्टिकल 144 धारा 144 लग जाती है। उसी तरह से उस समय उन्होंने वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया इंडियंस की एजिटेशन को, इंडियंस की बेसिकली पूरी की पूरी जो गुस्सा था, फ्यूरियसनेस को रोकने के लिए। अब व्हाट हैपेंड ऑन 10th अप्रैल 1919, बेसिकली 10 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919 दे अरेस्टेड 2 बिग कांग्रेस लीडर्स। अब उन्होंने कुछ नहीं किया था, वो बेसिकली नॉन वायलेंट मेजर्स में ही वर्क कर रहे थे, कांग्रेस लीडर्स थे। उन दोनों को अरेस्ट कर लिया विदाउट एनी वारंट, वही रॉलेट एक्ट, विदाउट एनी वारंट। 2 लीडर्स वर डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। 2 लीडर्स थे, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को अरेस्ट किया ऑन 10th अप्रैल 1919। 3 दिन बाद बैसाखी थी, 13th अप्रैल 1919। दिस इज द ब्लैक डे और द सैड डे जिसे कहते हैं इन इंडियन हिस्ट्री, जहां पर पीपल इन द अमृतसर डिसाइडेड दैट दे विल बी हैविंग अ पीसफुल प्रोटेस्ट। सुनिए, पीसफुल प्रोटेस्ट, आर्म्स नहीं थे, पीसफुल प्रोटेस्ट इन द जलियांवाला बाग अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट एंड द अरेस्ट ऑफ दीज 2 कांग्रेस लीडर्स। अब जब ये अरेस्ट के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन करने वाले थे तो वहां पर देयर वाज अ ब्रिटिश जर्नल हुज नेम वाज जनरल डायर। नाम सुना होगा आपने, जनरल डायर फेमस आदमी है क्योंकि बहुत क्रूएल आदमी है। सो व्हाट हैपेंड, दिस जनरल डायर वांटेड टू टीच इंडियंस अ लेसन। अब अपनी आप पे आ गई ना कि भाई ही टुक हिज ऑन इट्स प्राइड, इंडियंस कैसे बिना परमिशन के एक रैली कर सकते हैं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। I'll teach them a lesson. अब what happened? With his soldiers, he surrounded the Jallianwala Bagh. It had only one entrance and exit. एक ही एंट्रेंस था, एक ही एग्जिट, दोनों पूरे से सराउंड किया, सब पूरे पुलिसमैन ने कवर किया उसे। बिना वार्निंग के ही ऑर्डर्ड फायरिंग, बिना किसी वार्निंग के ही स्टार्टेड firing, ordered firing, and the firing continued till 10 long minutes. 10 मिनट तक फायरिंग्स चलती रही जब तक एम्यूनेशंस खत्म नहीं हो गए, जब तक बंदूकों की गोलियां खत्म नहीं हो गई। The people were dying, the people were jumping into the wells, hundreds of people died, thousands were injured, the numbers were many more. It has been said कि जलियांवाला बाग की मिट्टी लाल हो गई। इस क्रूएल इंसिडेंट से इंडिया में बहुत बड़ी एक शोक की लहर दौड़ गई। देयर वाज अ मॉर्निंग, देयर वाज अ बेसिकली वेरी सैडफुल इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन इंडियन हिस्ट्री। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल लौटा दिया इसके बाद। और इसके बाद जब ये पूरी की पूरी इंसिडेंट हुई तो गांधी जी वाज आल्सो फ्यूरियस और वो भी कुछ करना चाहते थे बड़ा। उससे पहले क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के जो डुअल फेस नेचर था उसके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ विच इज ऑल्सो नोन एज एंटी ब्रिटिशर्स मूवमेंट बाय मुस्लिम्स, और इसे फेमसली जाना जाता है खिलाफत मूवमेंट के नाम से। लगभग आपके अक्टूबर नवंबर के समय खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया, इट वाज अ एंटी ब्रिटिश मूवमेंट बाय द मुस्लिम्स, जो 2 ब्रदर्स ने स्टार्ट किए जिन्हें फेमसली अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली। 1919 when they started this खिलाफत मूवमेंट, they wanted to show the real face of the Britishers towards the Muslims. वो मुस्लिम्स की तरफ ब्रिटिशर्स का रियल फेस दिखाना चाहते थे, बिकॉज ब्रिटिशर्स व्हाट डिड दे डू, they showed that they are very loyal towards the Muslim in India, but in the First World War they destroyed the whole caliphate of Turkey, which is also known as Ottoman Empire. पूरे के पूरे Ottoman Empire को, पूरे के पूरे Turkish Empire को स्वाहा कर दिया, पूरे के पूरे को तबाह कर दिया। क्यों? क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, अपनी सुप्रीमेसी को लाना चाहते थे। एंड अली ब्रदर्स वांटेड टू शो द रियल फेस ऑफ द ब्रिटिशर्स टू द इंडियंस। अब नाउ गांधी जी लॉन्च्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920।
1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। अब गांधी जी ने क्या सोचा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करते हैं, और साथ ही साथ कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने स्टार्ट किए फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? फर्स्ट, Hindu Muslim unity. What happened? Gandhi ji said that Hindu Muslim unity should be there, and for that, what did he do? He merged the Khilafat movement with non-cooperation movement. इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को किससे मर्ज कर दिया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। इसके बाद नेक्स्ट, he wanted to promote the untouchables in India, that is why he named as Harijans. उन्होंने उनका नाम हरिजन दे दिया। थर्ड, he wanted to show that the Indians can produce the goods by themselves, and that is why he also clubbed Swadeshi, producing goods in our country, and boycott of the foreign goods and services. Next, he made चरखा जानते हैं गांधी जी का चरखा? बहुत से लोगों ने देखा है गांधी जी का चरखा। That he made चरखा as the symbol of pride, freedom and self dependence. हम खुद से अपना कॉटन बनाएंगे, खुद से अपना यान बनाएंगे, खुद से अपने क्लोथ्स बनाएंगे। So in this manner, Gandhi ji launched the non-cooperation movement 1920. It was a very beautiful movement that was launched, and it was running very properly. बहुत ही खूबसूरत मूवमेंट, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था, and the Britishers were totally rattled मतलब हिल गए थे पूरी तरह से परेशान हो गए थे with the movement which was started। और ये ऐसा मूवमेंट था जो कुछ नहीं, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रखी। अब व्हाट हैपेंड, जब ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हो रहा था, पूरा का पूरा मूवमेंट हो रहा था, तो गांधी जी ने पूरे के पूरे मूवमेंट को अपने लीडरशिप में चला रहे थे, एंड इट वाज रनिंग ब्यूटीफुली। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, काम छोड़ दिया, और सोचा कि नहीं, अब समय आ गया, विल बी गेटिंग द फ्रीडम फॉर द ब्रिटिश क्लचेस। लेकिन एक सैडफुल इंसिडेंस हुआ, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया। और ये एक ऐसा इवेंट है जहां पे गांधी जी की भी पॉपुलैरिटी घटी इंडिया में। एक पूरा का पूरा एक स्लैग पीरियड आता है इंडियन इंडिपेंडेंस में, और ये पूरा का पूरा मूवमेंट सफर कर गया। और उसके बीच में विल बी टॉकिंग अबाउट चौरी चौरा इंसिडेंट। यस, चौरी चौरा इज अ प्लेस नियर गोरखपुर। आपने सुना भी होगा, ट्रेन चलती है। वेरी गुड। सो ये जो ट्रेन है, ये चौरी चौरा नाम की एक जगह है गोरखपुर के पास। चौरी चौरा इंसिडेंट बेसिकली टुक प्लेस ऑन 5 फरवरी 1922। 1922 में ये घटना हुई, और ये जो घटना थी बहुत ही, आप कह सकते हो, गांधी जी को हिलाने वाली घटना थी। बिकॉज व्हाट हैपेंड इन दिस, अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स बर्न द पुलिसमैन अलोंग विद द पुलिस स्टेशन। यहां पर क्या किया, ग्रुप ऑफ फार्मर्स ने पुलिसमैन को पूरे पुलिस स्टेशन के साथ जला दिया और उनके आर्म्स को लूट लिया। एंड व्हाट हैपेंड, दे किल्ड द पुलिसमैन, दे बर्न देम अलाइव, और नॉन वायलेंट मेजर को छोड़ दिया। लेकिन इसके पीछे भी एक घटना है। इट वॉज बीन सेड दैट द रिटेलिएशन वॉज देयर। इससे पहले ब्रिटिशर्स ने कुछ फार्मर्स को वहां पर क्या किया था, शॉट डेड किया था। बिकॉज वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, तो कुछ ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स ने जाकर उन्हें गोली मार दी। अब उसी वजह से एक रिटेलिएशन था ये फार्मर्स का। बट व्हाट हैपेंड दैट गांधी जी थॉट नो, इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज इट इज अ नॉन वायलेंट मैनर, और वायलेंस की इसमें कोई जगह नहीं है। गांधी जी ने एक एक्सक्यूज किया कि भाई, इंडियंस आर नॉट रेडी फॉर द फ्रीडम एट दिस मोमेंट बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग नॉन वायलेंस, एंड ही टुक बैक दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब जैसे ही उन्होंने असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पीछे ले लिया, वैसे ही ब्रिटिशर्स की जान में जान आई, और गांधी जी की पॉपुलैरिटी भी घटी। फिर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, because on the charges that there was a damage to the British property and the killings of many people all around the country इनके charges में। And then there was a sadful end to this era of independence। इसके बाद एक slack period आता है, फिर 1928 से freedom struggle में फिर से एक जान आती है। So I hope that this video was clear to you and you like this video. If you like this video, please press the button. Also subscribe this channel and don't forget to press the notification bell icon.